Hello, dear students. So, as you know, we have completed the third chapter. I hope you have understood the chapter. In the previous videos, we have discussed a lot about the features of the earth and its changing earth since the beginning, since the when the geography chapters have started. First chapter was talking about environment. Second chapter, you came to know what all things are there inside the earth. वी आर स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट लेवल. मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर योर फॉर योर इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन. वी हैव द क्रस्ट, द मैंटल एंड द कोर. वी आर स्टेइंग ऑन द क्रस्ट. गॉट इट. जितना भी ज़मीन है, ऑल द अर्थ सर्फेस दैट वी हैव इज इंक्लूडेड इन द क्रस्ट, and it is also called as lithosphere, I mean. Okay, so the crust that is formed, the crust that is there, it is the base of all the human life. Okay, so this was all about the earth, and inside the earth then we have the mantle, then we have the core. Now try to understand ki what are the changes that happened inside the earth. The changes that happen on the earth and inside the earth are divided into two categories: endogenic and exogenic. Endogenic, internally; exo means externally, internal and external. धरती के अंदर जो movements होते हैं, because there is lot of heat inside the earth surface. So when this heat has got some reaction, when this heat have some action on the earth, so inside action has effect on the outside earth surface, it is called as endogenic. and बारिश होती है, तूफान आता है, हवा चलती है, there are glaciers that are moving. ये जो external movements होते हैं, this is called as exogenic. ठीक है. So we have already discussed the second question. हमको अभी question answer discuss करना था children. So this was the answer to your second question. What are exogenic and what are endogenic forces? So external is exogenic and internal is endogenic. Internal. Got it children? So ये तो एक answer हो गया. अभी many students were asking me, why do the plates move? Plates move because of the internal disturbances. It is because of the tectonic forces. Now what are these tectonic forces? So I'll show you in the chapter only children. मैं आपको chapter में दिखा देती हूँ कि ये internal movement क्यों होता है. Just a minute children. Yeah, just see. Lithosphere. Just see, we have already talked about the lithosphere. Lithosphere is हम जहाँ पे रहते हैं, the place where we are living. The crust, the earth surface, the above earth surface is the lithosphere, and it is broken into number of plates, which is called as lithospheric plates. Okay. तो these plates are moving very slowly. मीन्स अब पानी के ऊपर है ना, ये जितना भी अर्थ सरफेस आप देख रहे हो, इट इज़ ऑल ऑन वाटर. वाटर पे आप कोई भी चीज़ डालो तो या तो वो फ्लोट करेगी या फिर अंदर चली जाएगी. सो ऑल दीज प्लेट्स दैट आर देयर, एंड प्लेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स. चिल्ड्रन, you know the continents? Yes, we have 7 continents, and all these continents are constituting the plates, earth surface. तो क्या होता है, इंटरनल अर्थ क्यों मूव करता है? वाई देयर इज मूवमेंट? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा. मॉल्टेन मैग्मा आई टोल्ड यू अभी, जैसे कि ये है, दिस इज अर्थ. ओके, दिस इज क्रस्ट, दिस इज मैंटल,
एंड ये बीच वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज कोर। ठीक है, तो क्या होता है देयर, ये मैंटल जो है दिस इज वेरी हीटेड पार्ट एंड लॉट ऑफ रॉक पीसेस आर देयर। ये रॉक पीसेस इज इन लिक्विड फॉर्म हियर इन द कोर। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ का गैस बहुत बढ़ जाता है। आप कोई भी चीज़ को जब बॉईल करते हो, व्हेन यू बॉयल एनीथिंग, तो व्हाट हैपन्स, यू टेक अ बीकर एंड यू बॉयल द वाटर। यहाँ पे वाटर है, वेपर विल स्टार्ट कमिंग आउट, है ना। यहाँ पे जब फ्लेम्स आर हियर, हीटिंग इज हैपनिंग, तो वेपर्स कम आउट। तो बिकॉज ऑफ दिस वेपर क्या होता है, देयर इज मूवमेंट। आप किसी भी भगोना जो पानी खोल रहा है उसके ऊपर व्हेन यू कीप द प्लेट, यू विल सी द प्लेट मूविंग। इन द सेम वे इनसाइड द अर्थ, व्हेन हीट इज हीटेड हियर, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके वेपर्स बाहर आते हैं एंड व्हेन इट स्टार्ट्स, इट ट्राइज टू कम आउट। मॉल्टेन मैग्मा, रॉक, ये जो चट्टान आप देखते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान, इट मूव्स। सो मॉल्टेन मैग्मा ट्राइज टू कम आउट, मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर, जैसा कि एक्टिविटी में दिखाया गया है। इफ यू वांट टू डू द एक्टिविटी यू डू इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट बेटा, डोंट डू इट, ओके। एंड एज अ रिजल्ट द अर्थ मूव्स। Okay, so the earth movement plates causes changes on the surface of the earth. Because the earth is moving, so these plates are also moving. All these plates are also called as continental plate. Continental plates. So when these plates are moving, the surface of the earth is changing. Am I clear? So this is because of the movement of molten magma inside the earth. ये था आपका आंसर। Now we come back to the questions, children. We have already discussed about the endogenic and exogenic forces. Now we will be talking about what is erosion. Erosion, the external forces, erosion happens because of exogenic forces. अर्थ का फॉर्म चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ विंड। द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ चेंजेस इट्स शेप, दैट इज कॉल्ड एज इरोजन। फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, हाउ आर द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? बिकॉज ऑफ द फ्लड। यू हैव हर्ड ऑफ फ्लड ना, फ्लड्स आर कॉज्ड, जैसे फ्लड होती है ना, रिवर्स आर फ्लोइंग, ओके, एंड सपोज हियर इज अ विलेज, गॉट इट, मान लो यहाँ पे विलेज है, ये रिवर फ्लो कर रही है, फिर कभी कभी क्या होता है, वाटर एंटर्स द विलेज, ये सारा पानी इधर आ गया, बहुत बारिश हुई एंड द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, इट एंटर्स द विलेज। तो विलेज में क्या फेस हुआ, गॉट इट, I'll again show it to you. River is moving and this is the village. Water enters inside the village. So these are houses, घर हैं सारे, ठीक है। I'm not very good at drawing बेटा, तो थोड़ा सा रफ में ही बता रही हूँ। Then after some time when the water goes back, ठीक है, इस रिवर में जाके मिल जाता है, then this area, ये जो बीच वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लड प्लेन। पहले पानी गांव में घुस गया, फिर पानी जो है वो वापस चला गया। सो दिस वे ऑफ वाटर कमिंग इन द विलेज एंड गोइंग बैक इज कॉल्ड एज द, that causes because that is caused because of the movement of the water. This area is called as flood plain, ठीक है। What are sand dunes? ये it is like this, small छोटे छोटे, ये है, this is all sand, ठीक है। Now this is sand
अभी हवा चल रही है, हवा आ रही है, लॉट ऑफ विंड इज कमिंग। फिर हवा धीमी हो गई तो ये सारा सैंड जो है डिपॉजिट्स हियर इन डिफरेंट शेप्स। सैंड इज मूविंग बिकॉज ऑफ विंड। तो ये जहां पे जाके डिपॉजिट होते हैं, दोज प्लेसेस आर कॉल्ड एज सैंड ड्यून्स। बीचेस, हाउ आर द बीचेस फॉर्म्ड? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द सी। ठीक है, दिस इज सी and this is land. So this sea is also bringing lot of water here और बार बार जाके लैंड से टकरा रही है, ये सारा पानी टकरा रहा है। and the material that sea is bringing with it is deposited here. this forms, जहाँ पे जाके the sea water is touching the land, there the beaches are formed. Clear? What are Oxbow Lake? ठीक है, river is flowing. Sometimes what happens, here we have the meanders. Try to understand, when the river is flowing, it is bringing lot of waste material with it. बहुत सारा सामान जब वो लेके आती है रिवर, तो it deposits it on sides and it separates itself. ये पानी यहाँ पे अलग हो जाता है and a small lake is formed here. This kind of a lake that is separated from the river is called as Oxbow Lake. Got it? Not very clearly. So the river is there and यहाँ से कटते कटते क्या होता है, द लेक इज, ये वाटर यहाँ पे जमा हो जाता है and river starts flowing in this path. So this is called as, and it is in the form of oxbow. This is Oxbow Lake. Got it, children? So now you understand the Oxbow Lake. Which is not, ये भी समझो, इरोजन के वजह से, you understand erosion, I told you ना, because of the action of water and wind and sun, erosion happens. तो ये जो इरोजन होता है विंड के वजह से, सन के वजह से, या फिर वाटर के वजह से, तो सर्टेन लैंड फॉर्म चेंजेस. So this is one feature, this is one feature. Beach is not formed because of erosion. ठीक है, so this is the answer. Not, because it is mentioned here, not. Sea cave is formed because of erosion of sea. Cliff is formed because of the erosion of sea. लेकिन not the beaches. Depositional feature of glacier. Deposition से क्या बनता है? अगेन यहाँ पे दिया हुआ है बीच. बीच. Moraine is because of glacier and floodplain is because of glacier. सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है? वोल्केनो होता है, फोल्डिंग होता है. फोल्डिंग आई टोल्ड यू ना, सपोज वन प्लेट इज हियर एंड वन प्लेट इज हियर, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. जब ये सारे ये दोनों प्लेट्स जब एक साथ टकराते हैं, व्हेन इट कोलाइड्स विद ईच अदर, ब्लूम करके टकराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? माउंटेन बन जाता है. दिस इज कॉल्ड एज फोल्डिंग. फ्लड प्लेन, जहाँ पे फ्लड आया है, where the flood has come, that area is called as flood plain. Now mushroom rocks. Where do we find mushroom rocks? Desert. वो डेजर्ट में इस तरह के फीचर्स होते हैं जहाँ पे मशरूम कैसे. Here this is there, it is in the form of mushroom. Mushroom देखा है, everybody has seen the mushroom ना.
तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है. दिस इज द आंसर. मेनली इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ wind. Oxbow lakes are found in the river valleys. जहाँ रिवर फ्लो कर रहा है, आई टोल्ड यू ना, अभी हमने डिस्कस किया था. एंड यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी रिवर का वाटर एक साइड में जाके वहाँ पे एक लेक बन जाता है. दैट काइंड ऑफ अ लेक इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक. ओके चिल्ड्रन, यस. मैच दी फॉलोइंग है चिल्ड्रन. आई थिंक यू कैन डू इट वेरी वेल. ये आप इसको आराम से कर सकते हो. नो यू कांट डू इट. अरे इतनी बार तो डिस्कस कर लिया. ग्लेशियर्स कैसे होता है? व्हाट इज ग्लेशियर? रिवर ऑफ आइस. व्हाट इज meanders? meanders किस चीज से बनते हैं? इज बिकॉज ऑफ रिवर्स. बीच कहाँ पे मिलता है हमको? सी शोर पे. सैंड ड्यून्स, वेयर डू वी गेट सैंड ड्यून्स? वी गेट इन डेजर्ट. वाटरफॉल क्या होता है? earthquake is vibrations of earth. Waterfall is on the hard bedrock. Got it? So this was your match the following. अभी give reasons है. Some rocks have a shape of mushroom because of the action of wind. यहाँ पे I am telling you, you have to just go through it once. एक बार आपको देखना पड़ेगा कि विंड के एक्शन से हाउ द मशरूम रॉक्स आर मेड. ओके. फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. मशरूम रॉक अभी मैंने पहले भी आपको समझाया चिल्ड्रन दैट दीज आर द मशरूम. ये यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये जो छोटे छोटे रॉक्स, दीज रॉक्स विच आर फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, व्हाट हैपन्स, ऊपर से तो वो हो जाते हैं, इट इज राउंड अबव एंड it is cut from the down because of the action of wind. This kind of rocks are called as mushroom rocks. Okay. Flood plains are very fertile. Yes. What happens कि जब बाढ़ आती है ना, so the river brings lot of material with it. It is caused because of the river action. तो ये the soil which river is bringing with it is very good soil. एंड बहुत गीली मिट्टी होती है, पानी बहुत अच्छा होता है, मीठा पानी होता है. तो उसकी वजह से द एरियाज वेयर दिस फ्लड कम इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स. एंड वेरी गुड एग्रीकल्चर हैपन्स हियर. सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स बिकॉज अभी ये सपोज देयर इज अ रॉक पीस, हाँ, एंड दिस इज ऑल सी. ठीक है, क्या है ये? दिस इज सी एंड कंटिन्यूसली इट इज स्ट्राइकिंग दिस रॉक. पानी जो है ना लगातार इस रॉक पीस पे आ रहा है, तो पहले तो यहाँ छोटा सा केव बन जाता है. ओके. एंड ग्रेजुअली ये तो लगातार पानी आ रहा है, फिर ये क्या होता है ना, दिस रॉक इज कट इनटू टू पार्ट्स. एक रॉक इधर रह जाता है, एक रॉक इधर चले जाता है. दिस इज कॉल्ड एज स्टैक. First we have the caves. Again I'll show you. Suppose a rock is here and here is sea. ये क्या है? sea है. So when the water is continuously hitting this rock piece, तो first what happens here is cave is formed. फिर this cave turns into an arc. Water starts going from one direction to the other direction. यहाँ से निकल के पानी इधर जा रहा है.
then the rock piece cuts into two parts. तो वन पार्ट, जो पार्ट कट गया है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैक. क्या कहते हैं? स्टैक. यस. Buildings collapse due to earthquake. Yes, internal movements are there, tectonic movements are happening. As a result, big buildings that are there, it is broken. Buildings are here ना, ये देखो big buildings are here. Okay. And here suddenly it starts moving. तो it will shake, इधर होगा, इधर होगा, and then this will fall down, this building. Then that is called as earthquake. नीचे photographs are given here, children. You can see these photographs. ये क्या है? पहला वाला मैं आपके लिए कर देती हूँ. What is this? This is waterfall. Got it? उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? रॉक में क्या हो रहा है? दिस इज बिकॉज द वाटर इज फॉलिंग. व्हाट इज हैपनिंग टू दिस रॉक? फॉल हो रहा है ना. द रिवर इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग एंड डिपॉजिट. यहाँ पे लगातार पानी गिर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दिस द रॉक फॉर्म विल चेंज एंड इट इज कॉल्ड एज इरोजन. क्या कहेंगे? इरोजन. यस. नाउ जस्ट सी, ये क्या है? दिस इज अ रिवर. Okay, and what is it formed? ये जो आप देख रहे हो, रिवर यहाँ से आ रहा है. and what has the river formed? These places are called as meanders. क्या कहते हैं? meanders. This is because of deposit. because the river, देखो फिर से मैं समझा रही हूँ आपको, समझो. ये जो रिवर फ्लो कर रहा है, इट हैज डिपॉजिटेड इट्स मटीरियल हियर. ये देखो कितना हरा भरा है. इट्स सो ग्रीन बिकॉज रिवर इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स विथ इट. तो एंड इट हैज डिपॉजिटेड हियर. यहाँ पे जमा कर दिया. रिवर ने अपने साथ जो भी सामान लेके आए, ऑल द मटीरियल दैट रिवर हैज ब्रॉट, इट हैज डिपॉजिटेड हियर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिपोजिशनल फीचर्स. deposit. Okay children. ये क्या है? देखो कितना सुंदर एग्रीकल्चर हुआ है. सच अ गुड एग्रीकल्चर इज हैपनिंग एंड इट इज सो ग्रीन. यहाँ देख रहे हो पेड़ एड़ है, इसी के पास में नदी है. तो दिस काइंड ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड एज फ्लड प्लेन. क्या कहते हैं? फ्लड प्लेन. इतना अच्छा एग्रीकल्चर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज हैपनिंग हियर. दिस एरिया वुड बी कॉल्ड एज, बिकॉज माइट बी वाटर हैज कम हियर सम टाइम. किसी दिन यहाँ पे पानी आया होगा. तो बिकॉज ऑफ दैट फीचर व्हाट हैज हैपेंड दैट द दिस इज डिपॉजिटेड, वाटर इज डिपॉजिटेड हियर एंड गुड क्वालिटी soil is here. So flood plain has happened because of the kind of. So children, this was the flood plain. Okay, so we have completed the question answers here children. So children, in the last class also I told you I have just taken it out from the net only, because I know although I have discussed, but still you will be finding difficulty in writing down the answers. So how do the plates move? Here you can see the answer is mentioned here children. The plates move because of the movement of molten magma inside the earth. Got it? So this is the answer of the first question. Second, exogenic and endogenic forces. I have already discussed it in detail, but still for your reference. The forces that work on the surface of the earth is exogenic, and the forces which are working internally inside the earth is called as endogenic. What is erosion?
Erosion is wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. ठीक है, वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप. देखो इसको समझने की कोशिश करो चिल्ड्रन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो जमीन है, जो धरती है, द लैंड दैट इज देयर, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ दैट लैंड. ठीक है, पानी आके, विंड आके वो सारे लैंड को अपने साथ बहा के ले गए, या पूरा गल गया, पूरा मतलब कि द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज चेंज्ड, देन दैट इज कॉल्ड एज द wearing away of landscape by water, wind and ice. How are flood plains? Flood plains कैसे होते हैं? अभी हमने वहाँ पे फोटोग्राफ भी देखा था चिल्ड्रन. When river overflows its bank, ठीक है, नदी बह रही है और नदी क्या होता है, गांव में घुस जाती है. So its neighboring, it enters into the neighboring areas which deposit layer of fine soil. बहुत good quality soil is deposited here. Then it is called as floodplain, and the material it brings with it is called as sediment. Whatever material the earth is, the water is bringing with it, it is deposited on the banks. This leads to the formation of flat, fertile floodplain. जो river अपने साथ जो मटेरियल लेके आए हैं, द मटेरियल दैट द रिवर हैज ब्रॉट विथ इट, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल फ्लड प्लेन. सैंड ड्यून्स क्या है? लो हिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू छोटे छोटे पहाड़ मतलब सैंड का. ठीक है, ये डॉट्स मैं लगा रही हूँ इसमें बिकॉज डॉट्स आर सैंड. तो ये जो सैंड के छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड एट वन प्लेस, इज कॉल्ड एज सैंड ड्यून. हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? सी वेव्स. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे सी है, एंड सी इज कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग द लैंड. तो अपने साथ सी जो मटेरियल लेके आते हैं, इट डिपॉजिट्स इट हियर ऑन द बैंक्स, ऑन द साइड ऑफ लैंड. तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस. ऑक्सबो लेक क्या है? ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मियांडर. ये रिवर है, एंड हियर वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड वन मियांडर इज हियर. तो क्या होता है, ये दिस कट्स ऑफ एंड फॉर्म्स. यहां से क्या हो गया, रिवर का जो एरिया है वो चेंज हो जाता है, द वे रिवर इज फ्लोइंग. And here one oxbow lake is formed. वो oxbow lake क्यों कहते हैं उसको? This also I'll tell. It is in this shape. इस तरह का लेक होता है. ऑक्स देखा, कभी देखा है? यू हैव सीन द ऑक्स बैल जो होता है, उसके ऊपर में देखोगे इस तरह का एक हम्प होता है. तो जिस तरह का जो शेप उस ऑक्स के ऊपर हम्प का होता है ना, उसी तरह के शेप का लेक बन जाता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक. दिस वी हैव डन. First is beach, second is moraine, third is volcano, which is caused by sudden movement of the earth, volcano. And mushroom rocks are found in deserts. Oxbow lakes are found in river valleys. यहाँ पे you have the match the following also. जस्ट चेक आउट द मैच दी फॉलोइंग. आप देख लो, ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे, सी शोर, मियांडर्स इज मशरूम रॉक. मैच दी फॉलोइंग. आई एम सॉरी चिल्ड्रन, ये नीचे दिया हुआ है. आंसर इज हियर. ग्लेशियर इज बिकॉज रिवर ऑफ आइस. मियांडर्स इज रिवर्स, दिस बिकॉज ऑफ रिवर्स. बीच इज फॉर्म्ड ऑन द सी शोर. सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड on the deserts. Waterfall is happening on the sea cliff. समुद्र के ऊपर से बहुत बड़ा सा वहाँ से वाटर गिर रहा है. Then earthquake is the vibration of the earth. So how does ये give reasons था. Some rocks have a shape of mushroom. Mushroom का shape कैसे लेते हैं rocks? That is what is mentioned here. Desert में wind is an active agent, जिसके वजह से rock is more than upper part.
So therefore some rocks have a shape of a mushroom. Floodplains are very fertile because floods deposit layer of fine soil. Cavities in the sea cave become bigger. अभी I told you what is a sea cliff. तो वहाँ पे क्या होता है, the roof of the cave remain forming sea arc. Further erosion breaks the roof and only walls are left. तो इससे क्या होता है, स्टैक बन जाते हैं. अर्थक्वेक के टाइम में बिल्डिंग्स क्यों गिर जाती हैं? दिस वाज द क्वेश्चन. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक वाइब्रेशंस हैपन ड्यू टू विच द बिल्डिंग्स फॉल डाउन. So here we have completed the question answers of this chapter. Next class we will be starting the new chapter, children. Till then keep revising and thank you so much. God bless you all.